नमस्कार सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिक्की डोगरा इस बार फिर इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ क्योंकि हर ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ PR ਲੈਣ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕਪੂਰ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। थैंक यू शिवानी मैडम, वैसे तो किसी भी पंजाबी या मैं कह सका कि किसी भी अगर कोई ह्यूमन बीइंग है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, USA ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ PR ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ +2 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ 5-7 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। क्या तरीका की होना चाहिए है, किन्ना गल्लां ध्यान रखना चाहिए जो ओपन स्पाउस वर्क परमिट जो वो किसी ने अप्लाई करना है? देखिए, पहले तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, ये वही लोग जा सकते हैं जिनका स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में है। अगर हम कनाडा की बात करें, हस्बैंड अगर जा रहा है तो वाइफ वहाँ होनी चाहिए, वाइफ जा रही है तो हस्बैंड पहले से कनाडा में होना चाहिए और वो स्टडी वीज़ा पे होना चाहिए या वो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क परमिट पे होना चाहिए। अगर तो वहाँ पे आपका स्पाउस पढ़ रहा है कनाडा में, अगर आपकी पढ़ाई चल रही है स्पाउस की, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपकी शादी होनी चाहिए, शादी कितनी पुरानी है उससे ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हस्बैंड वहाँ पे पहले से गया हुआ है या वाइफ वहाँ पे पहले से गई हुई है तो उनको वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने स्पाउस के लिए भेजने पड़ते हैं, जिससे यहाँ पे स्पाउस का हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमें शादी की फ़ोटोज़, शादी के कार्ड चाहिए होते हैं और रिलेशनशिप कितना पुराना है। काफ़ी बच्चे हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमें कब अप्लाई करना चाहिए, अगर हमारी वाइफ कनाडा चली गई है तो हमें कब अप्लाई करना चाहिए। तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी वाइफ जो है पिछले महीने गई है तो आप इस महीने भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ शिवानी जी कि कोई टाइम ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? नहीं, बिल्कुल टाइम की लिमिटेशन कोई नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਇਤਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾइफ गई सी, 6 महीने बाद मैं अप्लाई किया, मेरा जो ओपन सोर्स नहीं, जो कनाडा में है वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं मेंशन है कि आप 6 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी वाइफ के जाने के बाद, जब भी वो अपनी पढ़ाई वहाँ शुरू कर रही हैं, जिस डेट को शुरू कर रहे हैं उसके हफ्ते 10 दिन के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपको 6 महीने वेट करना है और आप 6 महीने के बाद या एक सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ही फाइल लॉन्च कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सारे हाँ केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि 6 महीने के बाद अगर आप लगाते हो तो आपका केस स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं जिनकी बाइट्स आप देख सकते हो, जिन्होंने जो है अपनी फाइल जो वाइफ के जाने के 10 या 15 दिन बाद ही लगा दी और वाइफ के जाने के बाद उनका खुद का वीज़ा 1-2 महीने के अंदर ही आ गया और उन्होंने 2-3 महीने में अपनी वाइफ को वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ की नई शादी होती है, कुछ की पुरानी शादी होती है, कैसे हैं डॉक्यूमेंट्स, कैसे हैं, क्या आपके पास फंड्स रेडी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम आपको सजेस्ट करते हैं। बट एज सच टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि आपको 6 महीने या 1 सेमेस्टर वेट करना जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਫ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं,
बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। जो भी वहाँ पे पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन मायने रखती है, क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे गया है। अब आपका स्पाउस यहाँ पे 10th पास भी हो सकता है, 12th पास भी हो सकता है, 8th पास भी हो सकता है कुछ केसेस में, और ग्रेजुएट या आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है। मेरी सजेशन बच्चों को यही रहती है कि अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगा रहे हो और आपको लगता है आपकी वाइफ वहाँ मास्टर्स कोर्स कर रही है और आपने खुद यहाँ 10th की हुई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10th के सर्टिफिकेट पे लगा दो। फेक डॉक्यूमेंट या फेक सर्टिफिकेट मत लगाओ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ये लगता है कि हमारी वाइफ तो मास्टर्स के लिए गई है और हमने यहाँ पे सिर्फ 10वीं की है, तो हम कोई सर्टिफिकेट लगा देते हैं, हम अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बना लेते हैं या हम कुछ ऐसे कर लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि जज केस अगर इस केस में एम्बेसी आपकी इंक्वायरी कर लेती है और आपका सर्टिफिकेट फेक पता चल जाता है, तो आपको उस पर कंप्लीट बैन लग जाता है 5 साल का। वाइफ वहाँ फंस जाएगी, आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वाइफ कनाडा में है और आपने यहाँ पे 8th की है, 10th की है, 12th की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल में वही लगा सकते हो और उससे आपकी एजुकेशन का से आपके केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। देखो कई कंसल्टेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ उदे रिस्पॉन्सिबल तुसी हो, ना कि कंसल्टेंट। मैंने एक गल होंदी है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी फाइल में जो भी लगा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल आपकी है। उसमें कंसल्टेंट आपने किससे लगाई है, कैसे लगाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम्बेसी तो आपको ही जानती है, क्योंकि फाइल आपके नाम पे ही है, एम्बेसी आपको ही जानती है, फॉर्म में साइन आपके हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी है, पासपोर्ट आपका गया है, तो अगर उसमें कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर उसमें कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो भी आपका है। अगर आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाओगे और कल को आप बोल दोगे कि किसी कंसल्टेंट ने लगाया, वो आपके किसी काम पे नहीं आएगा, क्योंकि उससे आप ही फंसेंगे। तो इसलिए ये आप गलत काम ना ही करें तो बेटर है। बिल्कुल। हुण तुसी आप देख लो कि अगर तुसी ये सोच के देखो एक बारी कि कोई भी डॉक्यूमेंट ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, रिफ्यूजल तो डरना चाहिए वैसे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी हमारा रिसेंट एक बच्चे का वीज़ा है, उसके 8 रिफ्यूजल थे और उसका वीज़ा हमसे आया है, ठीक है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट में मेरे पास एक क्लाइंट का वीज़ा आया, उसके 5 रिफ्यूजल थे और उसने 6वीं बार हमसे अप्लाई किया, उसका वीज़ा आया। तो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके रिफ्यूजल्स हैं तो उसको केस को आप बस अपना एक्सप्लेन करके डालो, उसको जस्टिफाई करके डालो। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरा रिफ्यूजल आ गया, मैं तो जा ही नहीं सकता, या मेरा केस खराब हो गया, या आप उस चीज़ में, आपकी वाइफ अगर कनाडा में है तो आप उससे लड़ाई शुरू कर दो या अपना रिलेशनशिप खराब करो। ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है तो आप उसका रीज़न पता करो, क्या रीज़न है, और उसको जस्टिफाई करके आप अपनी फाइल लगा सकते हो। अपना रिलेशनशिप खराब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की ज़रूरत है। देखो रिफ्यूज़ल तो मैं अक्सर कहता हूँ कि घबराया ना करो। रिफ्यूज़ल एक मान के चलो कि तुसी कोई कह सकते ਆਪਾਂ कि एक कोशिश करती सी कि हर कोशिश ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਡਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ बेसिकली कि ਤੁਸੀਂ कनाडा तो वापस नहीं आना। देखिए, जब कनाडा एम्बेसी रिफ्यूज़ करती है तो वो जर्नली यही रीज़न डाल के भेजती है कि आप वापस नहीं आओगे, या फिर वो एक 205 सब क्लास है उसमें ओपन वर्क परमिट को रिफ्यूज़ कर देती है कि आपका रिलेशनशिप हमें जेन्युइन नहीं लग रहा। यही रीज़न्स है। अब अगर हमने पूरी बात पता करनी है कि क्या रीज़न है, उनको किस चीज़ पे डाउट हुआ, तो उसके लिए हमें एम्बेसी में जो है केप्स नोट्स अप्लाई करने पड़ते हैं और उसमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका क्या रीज़न है। वीज़ा ऑफिसर को आपकी किस चीज़ पे डाउट हुआ, क्या आपके रिलेशन पे डाउट हुआ, क्या आपके फंड्स पे डाउट हुआ, क्या उसको ये लग रहा है कि आपकी शादी फेक है, या फिर उसको लग रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हैं, किस चीज़ पर डाउट है, वो आपको पूरी केप्स निकलवा के ही पता चलेगा। समटाइम्स हमें केस देख के भी पता चल जाता है, केप्स निकलवाने की नहीं ज़रूरत पड़ती कि उसमें रीज़न क्या हो सकता है रिफ्यूज़ल का। कभी कभी आपने फंड्स अपने बिल्कुल जेन्युइन नहीं दिखाए होते, आप 2 या 3 लाख फंड्स दिखाते हो, वो भी रिफ्यूज़ल का केस हो सकता है। कभी कभी इन केसेस में क्या होता है मेनली कि अगर आप
कनाडा में ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो भी स्पाउस कनाडा में है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही होना चाहिए। अगर वो वहाँ किसी प्राइवेट कॉलेज में है तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनको ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती और उनकी वाइफ्स वहाँ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही होती हैं। अगर आपने हस्बैंड वाइफ ने जाना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपको अपने कंसल्टेंट को ये बोलना है कि हमें आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन कराइए, हम प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाएंगे। खासकर वो लोग फंसते हैं जो पैकेज कराते हैं, पैकेज में वो प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो फंस जाते हैं और फिर वो अपने पति को यहाँ से बुला नहीं पाते। बिल्कुल, देखो किन्नी मैं भी वैसे बहुत सारे शो करता हूँ ना, लेकिन ये जी गल अज सामने आई है ये बहुत ही मैनू भी बड़ा मतलब एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि देखो अगर तुसी किसी ने भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ तो आ ही तुसी जेड़ा जे अपने स्पाउस ਨੂੰ ਉੱਥੇ बुला सकते हो, मतलब एलिजिबल हैगा। तो वैसे बुला तो प्राइवेट वाले भी सकते हैं लेकिन रिफ्यूजल दे चांसेस बन जाएंगे। नहीं, जो प्राइवेट वाले हैं अगर उनका डीएलआई एलिजिबल नहीं है, अगर उनके पास वहाँ वर्क परमिट की नहीं है, अगर देखिए ना मैं कनाडा में गई हूँ और मैं पढ़ रही हूँ और मैं ही अगर वर्क नहीं कर पा रही तो मेरा पति कैसे आके करेगा। एक सिंपल सी चीज़ है। एक जेन्युइन जी इन्फॉर्मेशन तुसी देखो कितनी वधिया गल इत्थे सामने आई है कि अगर कोई बच्चा इत्थों जिहड़ा गया है प्राइवेट कॉलेज दे विच, क्योंकि तुसी जदों कैनेडा जाना हुंदा है तो कोई भी देखा कंसल्टेंट कोल तुसी चले जांदे हो, उत्थे भी ये भी जाके नहीं पुछदे हो, सिर्फ तुसी ये कहंदे हो कि साडे 6 बैंड सीगे आ साडा मुंडा साडी कुड़ी ने कैनेडा जाना जी, तुसी भेज दो जिथे मर्जी जेड़े मर्जी खूह च सिटना उत्थे सिट दो, उत्थे जाके आपां अपने आप देख लांगे। तुहाडी सिर्फ कोशिश ये हुंदी है एक बारी कैनेडा पहुंच जिहड़ी है कैनेडा तक हो जाए, उस तो बाद देखांगे। उत्थे जाके जिहड़ा जे है तुहानूं ये नहीं पता हुंदा कि वो प्राइवेट कॉलेज है या पब्लिक कॉलेज है या जो प्राइवेट हैगा तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ वर्क परमिट का लाइसेंस हैगा कि नहीं हैगा, उत्थे जाके तुहाडा बच्चा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो तुसीं इहो ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भेज ਦਿੰਦੇ हो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ जे है बच्चे ਦੀ ਜਿਹੜੇ बुरे दिन कह सकते ਆਪਾਂ स्टार्ट हो जाते हैं। एवें ही हुंदा बिल्कुल, क्योंकि अगर देखिए वहाँ पे लड़की चली गई है, हम यही मानेंगे क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ ही जाती हैं और वो वहाँ जाके अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हैं। पहली बात वो बुला नहीं पाएंगी क्योंकि लड़की प्राइवेट कॉलेज में है और अगर हस्बैंड नहीं आ पाएगा तो यहाँ से ससुराल का अलग से एक प्रेशर हो जाता है, लड़के के ऊपर अलग से प्रेशर है क्योंकि उसके दोस्त उसको बोले लग पड़ते हैं कि तेरी बीवी तुझे नहीं बुला रही। बिल्कुल, असली कारण क्या है वो आपको पता ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ किस बेस से अप्लाई करेगा जो पहले कोई वर्क परमिट दे राइट्स नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। आपने पहले बात का यही ध्यान रखना है जब भी आप लड़की को भेज रहे हैं या आप लड़के को भेज रहे हैं, जो भी स्टडी वीज़ा पे जा रहा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहिए ताकि वो आराम से पीछे वाले को, जो भी उसका हस्बैंड वाइफ पीछे है, उसको आराम से बुला सके। 1 साल के कोर्स में जा रहा है, 2 साल के कोर्स में जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीजी कोर्स में जा रहा है, डिप्लोमा में जा रहा है, सर्टिफिकेट में जा रहा है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके पास डीएलआई के पास जो है वर्क परमिट की, जिस भी कोर्स में वो जा रहा है उसमें वर्क परमिट की अथॉरिटी होनी ही चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जिनके पास ये नहीं होता और फिर वो फंस जाते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे लड़की को गए हुए 1 साल या 2 साल हो गए हैं और वो वर्क परमिट पे, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वर्क परमिट पे तो वो अपने हस्बैंड को कभी भी बुला सकती है। मतलब कि अगर जो कुड़ी ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ वर्क परमिट ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ यानी कि उन्हें अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली हुई है, उस तो बाद अगर वो बुलाना चाहे तो वो बुला सकती है, कभी भी। लेकिन इन बिटवीन अगर कुड़ी उत्थे स्टडी कर रही है प्राइवेट कॉलेज विच तां नहीं बुला सकती। लेकिन पब्लिक वाले ਜਿਹੜੀ इत्थों पब्लिक कॉलेज च कुड़ी गई वो बुला सकती है, वो बिल्कुल बुला सकते हैं। वो वहाँ जाने के जिस दिन उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, जाने के 10 दिन के बाद भी अपने हस्बैंड को बुला सकती है। हम फाइल डाल सकते हैं, उसके बाद वीज़ा लगने में ये है कि 10 दिन में आए, 20 दिन में आए या 25 दिन में आए। लेकिन अगर वाइफ वहाँ पे सितंबर इनटेक में गई है तो वो अपने हस्बैंड को विदिन 15 डेज उसकी अप्लाई फाइल कर सकती है और हस्बैंड को महीने 2 महीने में वहाँ पे उसका हस्बैंड पहुँच जाता है। क्योंकि अभी तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है, इसकी जो फाइल की प्रोसेसिंग टाइम है वही बहुत फास्ट है, काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी फ़ाइल जेन्युइन होनी चाहिए। आपकी शादी कब हुई, किन सर्कमस्टांसिस में हुई, आपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करी या घर वालों की मर्ज़ी से नहीं करी, शादी में कितने लोग आए थे, हमारे को पूरे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। आपको हमें सच बताना है, आगे हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डिफरेंट बात है, लेकिन सच ही बोलना है, झूठ ना बोलो तो बेटर है। बिल्कुल। देखो अगर मैं कहना ना कि अगर तुसी किसी डॉक्टर को जा रहे हो ना
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੁਕੋ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ है कि 1 साल ही जाएगा तो स्पाउस ਨੂੰ बुला सकता या 2 साल नहीं जाएगा? नहीं, अगर जो वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे गया, अगर वो 1 साल में गया तो भी वो स्पाउस को बुला सकता है, 2 साल में गया तो भी वो स्पाउस को बुला सकता है। 1 साल से ज़्यादा की पढ़ाई होनी चाहिए, वो कितना भी बुला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वो 1 साल के कोर्स में गया है तो फिर कभी कभी बच्चे ये कहते हैं कि हम 1 सेमेस्टर वेट करेंगे। जब तक आप 1 सेमेस्टर का वेट करते हो तब तक तो वो इनटेक दूसरा उसका सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है, क्योंकि सेमेस्टर तो 4 महीने का ही होता है। तो उस केस में फिर बच्चे को दिक्कत आ जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपका स्पाउस 1 सेमेस्टर में गया, 1 साल के कोर्स में गया है, तो आप अपनी फाइल थोड़ी जल्दी अप्लाई कर लो। आप 6 महीने निकलने का इंतजार मत करो, या फिर अपनी फाइल तब अप्लाई करो जब उसने वहाँ पे 2nd ईयर का कोर्स ले लिया। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕੈਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਾਈਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ नहीं देने। बट इसमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसमें आपने क्या करने हैं पैसे, अगर आपने अपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लगा रहे हो तो आपको पैकेज करने की उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए दिखाने हैं, वो आप अपने फादर से लेके दिखा सकते हो, मदर से लेके, रिश्तेदार से लेके अपने अकाउंट में दिखा सकते हो। आपके पास ITRs होंगी, आप जॉब करते हो तो आप वो दिखा दो। आपको क्या पता कि जिसकी आपने कंसल्टेंट को बोला है उसने जेन्युइनली बीच में वो स्टेटमेंट लगाई भी है कि नहीं लगाई, उसने क्या दिखाया है, तो उस चीज़ में आप फंस सकते हो। आप खुद से अपने रिलेटिव से लेके दिखा दो, आप अपने अकाउंट में ही दिखाओ तो बेटर है। इसमें कोई ऐसी आज की डेट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें 5 महीने पुराने, 6 महीने पुराने या 3 महीने पुराने पैसे चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश भी है, आपके पास सोर्स होना चाहिए कि पैसे कहाँ से आए। लेकिन कहीं से आप लेके अगर करवा रहे हो तो उन्होंने आपको वो पैसे किस कंडीशन में दिए, आपके पास ITR ज़रूर होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न तो ज़रूर ही होनी चाहिए लड़के के पास। ऐसा नहीं है कि वो अपने फादर की ITR दिखा दे, उनकी भी दिखा सकता है बट खुद की ज़रूर होनी चाहिए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? हमारे ऑफिस चंडीगढ़ में है, सेक्टर 32 में, आप वहाँ आ सकते हो। हमारा जम्मू में भी एक ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। मतलब अगर JNK वाली साइड ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ है। बिल्कुल जम्मू। और अगर पंजाब वाले रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗढ़ सेक्टर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। वरना आप हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं, तो आपको ऑनलाइन भी सारी जो है आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जा सकती है। काफ़ी क्लाइंट्स हमारे जो बॉम्बे के भी होते हैं या फिर वेस्ट बंगाल वाली साइड के भी हैं, तो उनको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं होती, उनका फ़ोन पे ही सारा काम हो जाता है, तो इतनी दूर आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप कॉल करके भी उसको रिजॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल, अगर तुसी नहीं आ सकते तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं, वो वैसे ही कॉल कर सकते हैं। कॉल पे उनको उसी टाइम अगर तो एडवाइज़र उनको रिजॉल्व कर देगा क्वेरी, अगर उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वहाँ पे कॉल बैक चली जाएगी।
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ 5-6 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤਾ दूर है जी, वीज़ा विनर का ऑफिस काफ़ी दूर है चंडीगढ़, असी इत्थे अपने आसपास ही फाइल लगा लेंगे हैं। वो हमारे को फ़ोन करके भी वैसे तो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे लोकल भी लगा रहे हो तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि उनका ऑफिस कितना बड़ा है, कितने बच्चे उन्होंने आज दिन तक भेजे हैं, कितना स्टाफ है। क्योंकि अगर आप 1-2 स्टाफ के वाले ऑफिस में जा रहे हो, कभी वो कंसल्टेंट ही ऑफिस बंद करके चला गया, स्टाफ ही नहीं है, तो आपको अपनी फाइल का कैसे पता चलेगा। कितने बच्चे हमारे पास जो आते हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए होते हैं, और अगर हम उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो जिस कंसल्टेंट से उन्होंने फाइल लगाई होती है वो कंसल्टेंट ही नहीं होता, वो कंसल्टेंट ही गायब हो चुका होता है, उसका कोई ऑफिस नहीं होता। तो एटलीस्ट आप ये तो देखो कि कितना पुराना ऑफिस है, कितने लोग हैं ऑफिस में और उन्होंने कितना वीज़ाज लगाए हैं। बाकी फ़ोन पे तो आजकल सब कुछ फ़ोन पे ही हो जाता है, फ़ोन पे ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हो जी। अगर तुसी भी किसी तरीके की कोई गलबात जी है पुछना चाहते हो तो वीज़ा विनर का ऑफिस जो है सैक्टर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 10 to 6 मतलब 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਡਮ किसी ने कनाडा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ सोर्स ਨੇ? अगर आपने कनाडा से भी कांटेक्ट करना है तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको कॉल बैक आ सकती है और आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हो, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के नंबर पे छोड़ सकते हो, वहाँ पे आ जाती है। ऑनलाइन सर्विसेज तो अवेलेबल ही हैं, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सारा कुछ वहाँ पे रिजॉल्व आपकी क्वेरी कर ही देंगे। और कई बार मैं देखता हूँ मैडम कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। लेकिन वीज़ा विनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मिल सकते हैं, बिल्कुल मतलब मैं अवेलेबल होती हूँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ समझा देंगे। लेकिन अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कुछ पूछना चाहे तो ਤੁਸੀਂ अवेलेबल हो। हाँ जी बिल्कुल, तो अगर आप कभी भी ऑफिस आना चाहते हो आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके आ सकते हो, जर्नली वहाँ पे हम लोग स्टाफ आपसे मिल लेंगे जी। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, YouTube, ਇੰਸਟਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। मेरा नाम जसमीत सिंह, मैं इंदौर कालका तो मैं प्रीवियसली वन रिफ्यूजल सी मेरी स्पाउस वीज़ा बट आफ्टर दैट आई विजिटेड वीज़ा विनर जिन्होंने 38 डेज़ के अंदर मेरा स्पाउस वीज़ा अप्रूव करवा के दिता है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार जरूर इत्थे विजिट करो और अपना केस इन्हों के थ्रू ही अप्लाई करो। थैंक यू। मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं मोगा जगह तो पिंड फाफूवाले तो रहने वाला हाँ। तो मेरी 2 वारी रिफ्यूजल आई है और एक बार इंटरव्यू आई है। इंटरव्यू तो बाद मैं वीज़ा विनर तो अपना वीज़ा लगवाने आया हाँ। तो मेरा वीज़ा इन्होंने स्टैंप करवा के मैंने पासपोर्ट दिता है अज दिता है। उस तो बाद चों मैं इन्ना अति धन्यवाद हाँ, तुसीं भी अपना वीज़ा विनर तो लगवान आओ जी। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इन्होंने अति। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕਸ।